study about the transport layer. What are the issues of transport layer? उसी विषय में आज हम लोग देखेंगे. Network layer more or less we have completed. Now what about the transport layer? So our topic is transport layer and the protocols that are within the transport layer. क्या क्या प्रोटोकॉल्स है उसी के विषय में डिस्कस करेंगे. जहां पे नेटवर्क लेयर जो है where we are having different types of layer, physical, data link, network and transport. 7 layers in OSI model and 4 layers in TCP/IP model. So every layer is destined to do a particular work. जहां पे डेटा लिंक लेयर जो है वो जो केयर करता है that is delivery between the hops. वो हॉप टू हॉप का डिलीवरी को वो टेक केयर करता है. तो अगर दो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर वी आर टेकिंग 2 systems like this and these systems are connected using routers, for example like this. So every system, so whenever a communication happens, so it happens at different layers, through different layers. तो जब हम एक नोड से नोड के बीच में जब बात करते हैं, that is from one hop to another hop, so it is the work of the data link layer to take care that the packet arrives at the particular destination, that is the next hop. So for example अगर इस राउटर के लिए ये उसका डायरेक्ट डिलीवरी में ये उसका डिवाइस है, that is the host है, और इस राउटर के लिए डायरेक्ट डिलीवरी में ये है. And in between there are different networks and the packet goes through network from hop to hop. तो जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पैकेट जाता है, so that type of delivery is called that is node to node delivery. When a packet goes from one device to another physical device, that type of delivery is called node to node delivery. Node to node delivery. When the packet traverses different types of nodes and crosses different types of networks and reaches its destination, that type of delivery is called host to host delivery, because we identify different types of we identify a device in a network as host. So at the network layer we are having what? Host to होस्ट डिलीवरी. तो नेटवर्क लेयर में जो डिलीवरी का जो टेक केयर करता है, नेटवर्क लेयर जिस डिलीवरी का बात करता है, दैट इज इट इज फ्रॉम होस्ट टू होस्ट. तो ये राउटर है, इसका अपना एक आईपी एड्रेस है, इस राउटर का अपने का आईपी, बीच में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं. तो अगर फ्रॉम राउटर टू राउटर डिलीवरी जब होगा, देन वी कॉल दैट ए होस्ट टू होस्ट. बट when there is a delivery between the that is the एंड सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, तो अगर ए से राउटर 1 पे अगर डिलीवरी होगा, इट इज अ डायरेक्ट डिलीवरी. तो इन दिस केस इट इज ए नोड टू नोड डिलीवरी. एंड व्हेन द पैकेट इज ट्रैवर्सिंग डिफरेंट नेटवर्क्स एंड through different routers and through different networks, so that type of delivery is called host to host delivery. But this two delivery is not sufficient. अब तक हम लोग यही डिलीवरी के विषय में देखे हैं. तो these two deliveries are not sufficient because ultimately what is communicating in a networking environment is basically the processes that is running in a multi-programming environment. जब हम multi-programming environment का बात करें, there are so many programs that may come in run in a dynamic state. So that type of programs, जब एक program का बात करें, it is a static entity. But when it comes to the RAM, when it is loaded to the RAM and comes in execution, then it becomes a dynamic entity and we call that thing as a process. उसको हम लोग कहते हैं process. तो अगर networking में जब दो system बात करते हैं, it is not that the systems or the IP addresses are communicating. Basically the thing that the processes are communicating. So when processes are communicating, they exchange data. So that type of delivery, that is when process delivers a data to another process, that type of delivery is called process to process delivery. So transport layer takes care of the process to process delivery. तो जो अब तक हम लोग देखे थे कि नोड टू नोड, होस्ट टू होस्ट, अब हमको एंड सिस्टम तक मुझे पैकेट को पहुंचाना है. दैट इज एंड सिस्टम में किसी पर्टिकुलर प्रोसेस तक, द प्रोसेस व्हिच इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, दैट डिलीवरी इज कॉल्ड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. अब चूंकि ये रियल टाइम एप्लीकेशंस से रिलेटेड है,
because process to process delivery is somewhat connected to real time. So in that case, every process has to be identified. So real time processes are to be identified. To be So a operating system can have multiple processes. Similarly, another system, that is the receiving system, can have multiple processes. So these are the processes, that is for example P1, P2, P3 and so on. And this is P1, P2, P3, so on. So each corresponding process of a system, that is a sending system, must communicate with the corresponding process in the receiving system. तो ये दोनों जो है एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन का को स्थापित करते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस. ये प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है. So in whenever we communicate, whenever two systems communicate, so one is we can communicate in two ways. One is peer to peer, जहां पे दोनों systems जो है equivalent की तरह काम करते हैं, peer to peer computing. Another is client server based computing, based communication. तो जहां पे क्लाइंट सर्वर बेस्ड कम्युनिकेशन हम करेंगे, सो देयर इज ए क्लाइंट सिस्टम, और बेटर टू से टू बी वेरी एक्यूरेट, कि एक जो कम्युनिकेट करेगा उसमें से कोई एक क्लाइंट प्रोसेस होगा जिस सिस्टम में वो चल रहा है, और दूसरा जो होगा वो सर्वर प्रोसेस होगा. सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्लाइंट system. Host A is client and host B is server. So in this case we need to identify what are the processes that are client processes and what are the processes that are the server processes. So some things that that come into picture is called, क्या क्या हमें identify करना पड़ेगा. We need to identify local host. For example this network में कौन सा नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है. So that is the local host. That is for example client A, और उस लोकल होस्ट में लोकल प्रोसेसेस कौन से हैं. So from P1 to P2, these are the processes in local host, and these processes must be communicating to some server in a remote location, that is called a remote host. वो कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क में होगा, रिमोट होस्ट, एंड that remote host must have that corresponding process so that it can reply to the request, so that it can respond to the request made by the client. तो client जो है हमेशा सर्वर को जो है वो रिक्वेस्ट पुश करता है, और सर्वर जो है उसका जो है रिस्पॉन्स से जवाब देता है. This is client server computing. So we are having remote host, remote processes. So in a client server computing हमें ये चार चीजों को आइडेंटिफाई करना है when we are dealing with end to end delivery. So process to process delivery is basically real time processes are communicating, and ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन है, जहां नेटवर्क लेयर से ही सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हर प्रोसेस जो है अपने करस्पॉन्डिंग प्रोसेस से ही दूसरे सिस्टम से वो वार्तालाप करता है. एंड फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई ईच प्रोसेसेस यूनिकली फॉर ए पर्टिकुलर होस्ट. एक होस्ट में जिसके पास एक ही आईपी एड्रेस है, हर होस्ट के पास आईपी एड्रेस अपना होता है, तो इस associated with that IP address, a client can have multiple processes at the transport layer. The transport layer basically identifies the processes with a unique number, so that the corresponding, so a process in a particular client can communicate with the corresponding process in the server with that unique number only. So that number, the number जो हम process के लिए use होता है, those are called the port numbers. Those are called the port numbers. So what are port numbers? So they are basically to identify the remote host and remote processes. Local processes and local processes को identify, remote processes को identify करने के लिए we are having port numbers. अब ये port number क्या होते हैं? What are port numbers?
numbers are 16-bit numbers that are given in either you say that it is a port number, or sometimes they are also said as service access number, service point addresses, SPA. सो ये एक यूनिक नंबर है जो 16 बिट से डिजाइन होता है. सो इसको टीसीपी आईपी में हम लोग पोर्ट नंबर कहते हैं, और ओएसआई मॉडल के रेफरेंस में इसको हम लोग सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का नाम देते हैं. We give the name of service point addressing. So ये कौन देता है पोर्ट नंबर? So there is an organization IANA. So Internet Assigned Number Authority. Internet Assigned Authority. It is an organization जो पोर्ट नंबर को असाइन करता है. कितने तरह के पोर्ट नंबर हैं? We are having different types of port number, but यहाँ पे we need to understand that port number जो है it is a different from IP address. IP address जहाँ पे एक host को define करता है, whereas when we say that IP address, so IP defines host, whereas port numbers defines processes among processes. बहुत सारे प्रोसेस जब एक सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, उस पे कौन सा प्रोसेस नेटवर्किंग के जरिए डाटा कम्युनिकेशन दूसरे प्रोसेस से करना चाहता है, ये हमारा पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है. कितने तरह से होते हैं? वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर. तो अलग अलग पोर्ट नंबर जो सिस्टम्स यूज करते हैं, द पोर्ट नंबर्स आर, पहला तो है वेल नोन पोर्ट्स. वेल नोन पोर्ट्स चूंकि 16 बिट का है तो इस पे रेंज बांट दिया गया है कि दिस पोर्ट नंबर विल वैरी फ्रॉम 0 to 1023. दैट इज ये नंबर है. अगर 16 बिट का है तो 65,535 तक हम लोग यूज कर सकते हैं. तो इसमें 1023 तक जो नंबर है इज वेल नोन पोर्ट नंबर्स. दीज आर असाइन्ड. ये आयना ही देता है हमें, असाइन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आयना. And then we have ephemeral port numbers. This range is from 1024 49152 to 4965535. These are randomly, किसी कंट्रोल में ये है नहीं, जिसको चाहिए वो यूज कर सकता है. ये आयना कंट्रोल में नहीं है, अनरजिस्टर्ड भी है, तो ये जो चाहे कोई भी क्लाइंट इसको रैंडमली यूज कर सकता है. सो एनी पोर्ट, एनी नंबर बिटवीन दिस. और जहां तक ये है, दिस आर नॉट सो सिक्योर्ड नंबर्स, दीज आर वेरी सिक्योर्ड नंबर, क्योंकि ये किसी वेल नोन, वेल डिफाइंड एप्लीकेशन के साथ ही ये बाइंडेड है पहले से. एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर. So this range is from 1024 to 49151. These are again, these are not under the control of IANA, but IANA अगर हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को यूज करेगा, फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन डेवलप किए हैं और जब ये नेटवर्क में आएगा, हो सकता है एंड्रॉइड का फोन हो, एंड्रॉइड का ऐप हो, या किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, वो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से ही कम्युनिकेट करेगा थ्रू टू एनी सर्वर. आई कैन आस्क टू आयना टू रजिस्टर दिस, आस्क ए पोर्ट नंबर बिटवीन 1024 टू 49151. इनमें से कोई एक नंबर मुझे दीजिए जिससे मेरा एप्लीकेशन किसी रिमोट सर्वर से कम्युनिकेट करेगा. तो ये रजिस्टर्ड नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बट वी कैन आस्क फॉर द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आयना. आयना से हम लोग मांग सकते हैं, जो ये पूरा सिस्टम को चलाता है, उनसे हम मांग सकते हैं कि व्हाट कैन बी माय पोर्ट नंबर.
So whenever there is a communication, जब भी एक communication होता है, so we need to bind this port number with the IP address, because host तो एक ही है और host के पास जो है IP address uniquely एक ही IP address होता है, but a host can have multiple processes. For example, हो सकता है उसके वो एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, हो सकता है वो एक मेल पे भी काम कर रहा है, हो सकता है बगल में वो ब्राउजर में एक वेबसाइट खोला हुआ है, हो सकता है वो एक दूसरे एप्लीकेशन से, फॉर एग्जांपल डाउनलोड एप्लीकेशन से कोई फाइल को वो डाउनलोड कर रहा है. It can have different types of applications running parallel in a multi-programming environment. So in that case, all the port numbers are to be logically mapped to the IP address, because IP is the junction point through which all data traffic goes. Network में अगर data traffic को move कराना है, we need the junction point that is called IP address. So a logical entity हमें build करना होगा using the port number and the IP address. तो port number और IP एड्रेस ये हमारा प्रोसेस के लिए है, ये हमारा होस्ट के लिए. जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो लॉजिकल एंटिटी हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस. इट इज कॉल्ड अ सॉकेट. तो जब भी कोई प्रोसेस आईपी से कम्युनिकेट करेगा तो उस प्रोसेस का जो पोर्ट नंबर है उस आईपी के साथ बाइंडिंग करेगा. सो सॉकेट इज क्रिएटेड बाय ए लॉजिकल बाइंडिंग between the port number and the IP address. IP address और port number के बीच में जब लॉजिकल बाइंडिंग होता है तो we have a thing that is called socket. It is a software entity. तो हमारे पास we can have network programming अगर एक कोर्स होता है उसमें आप you can go for socket programming. You can build sockets. आप सॉकेट्स बना सकते हैं जिसके जरिए आपका एप्लीकेशन जो है इस रिमोट एप्लीकेशन से बात करेगा. सॉकेट्स कैन बी प्रोग्राम्ड. सो ये लॉजिकल बाइंडिंग से काम करता है. दो आइडेंटिफायर के जरिए ये सॉकेट्स हम लोग बनाते हैं. सो व्हेनेवर देयर इज ए बाइंडिंग बिटवीन द सॉकेट एंड द पोर्ट नंबर, सो वी कैन नाउ मल्टीप्लेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस टू ए कॉमन आईपी. अब जो है हमारे पास पहले दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इन द ट्रांसपोर्ट लेयर दिस इज द आईपी लेयर, इट इज द नेटवर्क लेयर. यहाँ पे कॉमन आईपी काम कर रहा है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर में वी कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसेस कम्युनिकेटिंग थ्रू द आईपी. So we can have multiple processes communicating with the IP. तो अलग अलग प्रोसेस मान लीजिए इस सिस्टम पे चल रहा है and all the process will bind itself to the to the port numbers. All the processes are having unique port numbers and all the port numbers will bind itself with the IP. तो IP चूंकि सेम है लेकिन पोर्ट नंबर हर प्रोसेस का अलग है, तो हर प्रोसेस के लिए एक यूनिक सॉकेट बनता चला जाएगा जो कि उसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा उस सिस्टम में. तो दिस प्रोसेस की हम जो अपर लेयर से हम मल्टीपल प्रोसेस को एक सिंगल प्रोटोकॉल के जरिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट पोर्ट नंबर्स टू द आईपी एड्रेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. और ठीक इसी का अगर रिवर्स हम लोग करेंगे, दैट इज जो सर्वर साइड होगा वहां पर भी डेटा नेटवर्क लेयर से पहुंचेगा एंड ऑल द data has to be demultiplexed to respective port numbers only. तो उसी पोर्ट नंबर के पास उसी प्रोसेस के पास डिलीवर होना है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे FTP कम्युनिकेट कर रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो सर्वर साइड में भी FTP होना चाहिए एंड FTP का इस जो पोर्ट नंबर यहाँ से बाइंड होगा यहाँ भी सर्वर साइड का वही पोर्ट नंबर से यहाँ बाइंड होना पड़ेगा. So there has to be demultiplexed. At the same time, they may be using the domain. The server may be that is domain name system चला रहा है, या फिर हो सकता है वो और भी मेल ट्रांसफर that is मेल सर्वर भी चल रहा है. In that case, the processes are to be uniquely binded. तो इस तरह से हम लोग अलग-अलग प्रोसेस को कम्युनिकेट करवाते हैं through a common IP address. So this process is called demultiplexing. So in case of
that is transport layer to IP layer. So we have two things that is called multiplexing and demultiplexing. अब जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर का बात करें, देयर आर सम मोर थिंग्स कि दो तरह से हम कनेक्शन जो है, जब प्रोसेस टू प्रोसेस हम जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन बिटवीन द एंड प्रोसेसेस. So in that way it can be of two types. One is connectionless and connection oriented. Connection oriented. तो कनेक्शनलेस क्या है एंड व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, दोनों का क्या अर्थ है? जब हम कनेक्शनलेस स्थापना, दैट इज वी आर एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन, दैट इज द नेचर ऑफ द कनेक्शन इज कनेक्शनलेस. इसका मतलब है कनेक्शन मुझे एस्टैब्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है. नो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए. कनेक्शन, नो कनेक्शन टर्मिनेशन रिक्वायर्ड, टर्मिनेट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. और मतलब कोई जब चाहे हम कनेक्शन बना सकते हैं, अलग से उसको विहित रूप से बोल के कि हम कनेक्शन बनाने जा रहे हैं या फिर कनेक्शन बंद किया जाए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं. एनी टाइम इट कैन एस्टैब्लिश द कनेक्शन. दिस इज द वन वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन. जब प्रोटोकॉल, जब ट्रांसपोर्ट लेयर में हम बात करें, सो एवरी लेयर हैज इट्स डेटा यूनिट. फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल लेयर में जाए, उसका जो डेटा यूनिट्स है दैट इज द बिट्स. जब डेटा लिंक लेयर में जाए, इट हैज द डेटा यूनिट, जो उस प्रोटोकॉल का डेटा यूनिट है जो वो बनाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेम्स. जब हम नेटवर्क लेयर में जाए, इट इज हैविंग इट्स ओन डेटा यूनिट कॉल्ड पैकेट. उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. उसी तरह से जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर में जाए, the layer is having its own data unit that is called segments. So every protocol has its data unit that is called PDU, and it is referred as protocol data unit. तो अलग अलग लेयर में अलग अलग है. So in our transport layer we are having the protocol data unit called segments, or more or less sometimes it's called messages. And onwards from data transport layer onwards, these are called messages. तो ये इसके बाद जो है और कोई नाम नहीं है. ऊपर का सारा लेयर के लिए ये जो है डेटा मैसेजेस है, और सिंपली मैसेजेस ऐसे भी कहा जाता है. तो जब हम कनेक्शन लेस एस्टैब्लिश करते हैं, व्हेन टू मैसेजेस आर कमिंग, इसका मतलब है कि कनेक्शन लेस होने का ये भी एक अर्थ है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मैसेज, दैट इज पैकेट्स और द मैसेजेस. Messages are not numbered. मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है. अगर हम मैसेजेस को, जैसे हम लोग डेटा लिंक लेयर में कर रहे थे, तो उसको हम नंबर दे रहे थे, तो इन दैट केस वी आर क्रिएटिंग ए सीक्वेंस नंबर. तो इसका मतलब दोनों में रिलेशनशिप है, कौन किसके बाद है. सो इन दिस केस अगर कनेक्शन लिस्ट एस्टैब्लिश करेंगे, वी डोंट हैव एनी नंबर. अब पैकेट्स अराइवल जो है, इसमें पैकेट्स अराइवल जो है, इसमें कोई वेल डिफाइंड डिले नहीं है, अनडिफाइंड डिले है. तो डिले हो सकता है, उसके बाद पैकेट हो सकता है खो भी जाए, और कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है. नो सीक्वेंस नंबर भी नहीं है. एंड एट द सेम टाइम कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है. मतलब पूरी तरह से ये एक तरह से, मतलब क्या कहते हैं, पूरी तरह से ये खुला हुआ प्रोटोकॉल है, मोस्ट सिंपलिस्टिक वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये कुछ भी नहीं है, एंड दैट मेक्स कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स एज मोस्ट अनरिलायबल. इसी कारण से कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स जो है वो अनरिलायबल हो जाते हैं. द एग्जांपल इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. वी विल सी अबाउट इट. नेक्स्ट कम्स द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. क्या है ये कनेक्शन ओरिएंटेड? जो कनेक्शनलेस में नहीं है वो सारा कनेक्शन ओरिएंटेड में है. फॉर एग्जांपल जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट उसमें नहीं था, इसमें है. द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जैसे हम लोग यूडीपी में नहीं कर रहे थे, या फिर कनेक्शन लेस किसी भी तरह कनेक्शन लेस में नहीं कर रहे थे, इट इज देयर. और टर्मिनेशन भी है, मतलब बजाते उसको एस्टैब्लिशमेंट के लिए पूछना पड़ेगा और टर्मिनेट करने के लिए पूछना पड़ेगा. मैसेज जो है वो नंबर्ड रहता है कनेक्शन ओरिएंटेड में.
पैकेट जो है इसका अराइवल जो है एक फिक्स डिले होता है, वेल डिफाइंड डिले, कितने डिले तक मैसेज आ जाना चाहिए, लॉस्ट होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर लॉस्ट होगा तो उसको फिर से मंगाया जाएगा उस डेटा को। सीक्वेंस नंबर चूंकि है इसीलिए ये सारा कुछ किया जा सकता है, और एक्नॉलेजमेंट भी हर पैकेट का मिलता है। सो इट इज मोस्ट रिलायबल, दैट इज व्हाई कनेक्शन ओरिएंटेड protocols are most reliable. So these are reliable, जहां की हमारा जो So these are the two ways that in which we can communicate in the transport layer. Next comes the reliability and unreliability. So it depends upon the, basically depends upon the application layer. So अगर जब हम layered approach में बात करते हैं तो we are having upper layers, ऊपर में हमारे पास upper layers हैं और नीचे में बीच में हमारे पास transport layer है, उसके बाद हमारा जो that is IP layer, that is the network layer है, and finally we have data link layer. So, IP तो ये unreliable है, IP layer is unreliable, data link layer reliable है, लेकिन इसका जो सीमा है that is it is restricted to hop to हॉप। तो रिलायबिलिटी ये हॉप टू हॉप ही मेंटेन करेगा। इसका मतलब कि हमारे पास अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में रिलायबिलिटी मुझे ऐड करना है तो दैट मींस मेरे इस प्रोटोकॉल के पास रिलायबिलिटी होना चाहिए। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिलायबिलिटी चाहेंगे, इट इज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, एक प्रोसेस डेटा भेजना शुरू किया, दूसरा प्रोसेस उसको रिसीव कर रहा है, सो वी नीड हियर दैट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस टू प्रोसेस में हमको रिलायबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर हम इन अदर केस इफ यू आर यूजिंग कनेक्शन, अगर हम कनेक्शन लेस यूज करते हैं देन इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अपर लेयर टू मेक इट रिलायबल। कि अपर लेयर के पास जो है जो कुछ होना चाहिए दैट इज फॉर एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, कुछ ऐसा होना चाहिए कि ताकि अगर हम यूडीपी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो अपर वो ऐसे एप्लीकेशन से डेटा को लेना एक्सपेक्ट करता है कि जो आफ्टर द डेटा डिलीवरी टू द अपर लेयर कि वो अपना फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को वो मेंटेन करेगा। लेकिन अगर अपर लेयर अनरिलायबल है या फिर रिलायबल है भी, समटाइम्स इट इज ऐसा चाह मांगा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड ही यूज करें। So in that case we go for the connection oriented protocol. For example, we are having TCP and SCTP. These are the purely connection oriented protocol. We will see about it. देखेंगे हम लोग इसको। So ये purely depends upon the need of the application layer. Depends upon the need and nature of application layer protocols। एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं या फिर जो प्रोसेसेस काम कर रहे हैं उनका जो नीड है और नेचर है, अगर वो सिक्योरिटी चाह रहे हैं, अगर वो फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल चाह रहे हैं, देन दे हैव टू टेक केयर कि हाँ ठीक है यूडीपी नहीं दे सकता है तो हम लोग अपने तरफ से ये कर लें। लेकिन अगर दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर से अगर उसको कुछ चाहिए then it has to go for the TCP, that is TCP, transmission control protocol. Next comes the UDP. So तीन प्रोटोकॉल के विषय में हम लोग अब तक देख चुके हैं। What is UDP? User datagram protocol. So it is a very light weighted protocol, बहुत ही हल्का प्रोटोकॉल है, बहुत स्मॉल इसका सब कुछ जो डेटा पैकेट वगैरह सब कुछ ये यूडीपी बनाता है। और देयर आर नॉट सो मेनी नेटवर्क, जो होस्ट को वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता है, बहुत ज्यादा एंगेज नहीं करता है, ओवरहेड्स भी इसका बहुत ही कम है। सो जनरली इट इज एज बिकॉज इट इज अ लाइट वेट प्रोटोकॉल एंड एट द सेम टाइम इट इज अनरिलायबल टू। तो सवाल उठता है कि इसको यूज कहाँ पे करें।
तो पहली बात ये तो कनेक्शन लेस है, क्योंकि कनेक्शन लेस है तो ये अनरिलायबल है, और ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये काफी लाइट वेट है। सो जनरली इट इज यूज्ड बिटवीन द दैट इज फॉर स्मॉल मैसेजेस। तो इसको यूज जो है जनरली used for स्मॉल मैसेजेस में ही इसको हम लोग यूज करते हैं यूडीपी में भाई, बिकॉज चूंकि ये इसका जो कनेक्टिविटी है या फिर जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो रिलायबल नहीं है। सो व्हाट इज द पैकेट फॉर्मेट और द यूडीपी जो उसका जो बनता है डेटा का, प्रोटोकॉल का, डेटा यूनिट का, उसका फॉर्मेट क्या है? सो ये दिस इज आवर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। So this part is the data. This data is coming from the upper layer, and this is the header of UDP header. It consists of 8 bytes. 8 bytes. अब इसी header को अगर expand करें, having क्या फील्ड इसमें है जो कम्युनिकेशन को टेक केयर करते हैं, दैट सो दैट द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हैपेंस। सो पहला जो फील्ड इसमें आता है दैट इज कॉल्ड द सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट एड्रेस। सोर्स पोर्ट क्या नंबर, ये भी 16 बिट का होता है। नेक्स्ट दैट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी 16 बिट का होता है। नेक्स्ट वी हैव द लेंथ या फिर टोटल लेंथ, ये भी 16 बिट का होता है। एंड वी फाइनली वी हैव ए वेरी एरर चेकिंग जो कि हम लोग देख चुके हैं, दैट इज कॉल्ड चेकसम। दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ 6 बिट्स, 16 बिट का होता है। सोर्स पोर्ट नंबर का काम है दैट इज इट इज ए इन ये अगर हम क्लाइंट में इसको यूज करें, ये वो पोर्ट नंबर है जहां से वो क्लाइंट जो है अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, अपने प्रोसेस को वो पोर्ट नंबर असाइन करता है। तो क्लाइंट सिस्टम पे अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इट हैज स्टार्टेड इटसेल्फ टू कम्युनिकेट विद द सर्वर प्रोसेस, सो इट विल take a port number. That port number will be come into the field of source port number. So ये कुछ भी हो सकता है, it can be a well known port जो कि हम लोग देख चुके हैं, well defined port जिसका नाम पहले से असाइंड है, जो नंबर पहले से असाइंड है, या फिर वो एक रैंडमली चूजन एफिमेरल पोर्ट नंबर हो सकता है जो क्लाइंट रैंडमली चूज किया एंड इट इज ट्राइंग टू इट अप टिल नाउ कि अभी उसको पता नहीं है कि कौन सा पोर्ट नंबर से हम बात कर रहे हैं, रैंडमली एक पोर्ट नंबर ले लिया है, बट सर्वर उसको बताएगा या सर्वर से रिस्पांस के आधार पर उसको पता चलेगा। सो एफिमेरल पोर्ट नंबर से भी क्लाइंट कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जब यही पैकेट जब सर्वर भेज रहा होता है तो जनरली इट इज ए वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर, क्योंकि सर्वर को मोर और लेस उसको पोर्ट नंबर पता होता है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट किस तरह का पोर्ट नंबर से भेजा है, उस रिस्पांस के रिस्पेक्ट में वो जो रिक्वेस्ट के रिस्पांस में जो वो अपना रिस्पांस मैसेज देता है एवज में, that port number of the client chosen by the client, अगर वो ephemeral port number चूज किया है तो उस ephemeral port के respect में, with respect to that the server replies it with an ephemeral port number again. Next comes the destination port number. What is the destination port number? तो ये वो पोर्ट नंबर है कि जिस रिसीविंग मशीन, जिसके पास हम डेटा, जिस प्रोसेस के पास हम भेजना चाहते हैं, उसका पोर्ट नंबर से वो नंबर यहाँ पर दिया जाता है। सो इन दैट केस जब ये क्लाइंट भेज रहा है कोई पैकेट, यूडीपी पैकेट अगर भेज रहा है, तो वो अपना वो जिस सर्वर में जिस पोर्ट नंबर को वो भेजना चाहता है उस पोर्ट नंबर को वो इसमें डाल देता है, और when the server is responding, so it takes the port number given by the client जो पोर्ट नंबर उसमें दिया है that is request पैकेट में, उसी पोर्ट नंबर को वो अपना डेस्टिनेशन बना के रिप्लाई देता है। लेंथ ऑफ द पैकेट, that is the length of the UDP packet, it is defines the length of the datagram। ये डेटाग्राम का लेंथ, इस पूरे लेंथ को डिफाइन करता है कि मेरा यूडीपी कितने लेंथ का है। इट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द डेटाग्राम।
डेटाग्राम। तो जनरली इट हैपेंस कि अगर यही पैकेट को अगर हम आईपी में डालें, सो दिस वुड बिकम लाइक दैट। यही जो मेरा यूडीपी पैकेट है आईपी में, इसके बाद आईपी का एनकैप्सुलेशन नीचे के लेयर में जब ये आएगा, when this packet will come to the IP layer, it will be again be encapsulated with IP header. So in that case, so suppose this is our IP header, this is our UDP header, and this is our data जो ऊपर से आया है, and this is UDP header, this is IP header. तो टोटल लेंथ अगर UDP हेडर का पता करना हो, तो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज द IP लेंथ। IP का जितना लेंथ है, इस लेंथ से अगर हम IP हेडर को माइनस कर दें, सो वी विल गेट इस पार्ट को अगर माइनस कर दें, वी कैन गेट द लेंथ ऑफ द UDP हेडर। So this is the way to get the length of the UDP header. So the computer or the receiving system can estimate the जो कितने बिट्स को कैसे पता लगाता है कि कहाँ से हमको बिट्स डिकैप्सुलेशन के बाद कहाँ से हमको यूडीपी हेडर मेरा स्टार्ट हो रहा है। सो यूजिंग दिस इट कैन गेट। नेक्स्ट कम द चेकसम। सो व्हेन इट कम्स अबाउट चेकसम, चेकसम इज बेसिकली द स्यूडो हेडर is basically the sum of pseudo header plus UDP header and plus data, that is actual message। एक्चुअल मैसेज इन सबको अगर हम सम करें बिट फॉर्म में, तो जो मेरा आता है इसको फ्लिप करने के बाद वही मेरा चेकसम होता है। तो ये चेकसम कौन यूज करता है? यूडीपी चेक करता है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो डेटा इंफॉर्मेशन आया है कि वो कहीं बिगड़ गया हो या फिर अल्टर हो गया हो सकता है कि सोर्स डेस्टिनेशन पे पोर्ट नंबर जो बिट्स है वो चेंज हो गया होगा या फिर डेस्टिनेशन चेंज हो गया होगा। सो इट कंफर्म्स कि वो सही प्रोसेस पे वो डिलीवर हो रहा है कि। सो व्हाट इज द फॉर्मेट कि चेकसम कैसे अप्लाइड होते हैं? सो applies a pseudo header। ये actually ये header नहीं है। Why it is called pseudo header? Because it is basically not a header, it is some information taken from the IP header। so पहला जो IP का destination है that is 32 bit source IP address, then 32 bit destination IP address, then we have a field that is all zeros, then we have 8-bit protocol, 8-bit field for protocol identification। This is the point where the socket is created। यही वो प्रोटोकॉल नंबर है जिसके साथ आईपी को वो बाइंड करके वो सॉकेट बनाता है, जिसके से हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देख चुके हैं। एंड इट क्रिएट्स 16-bit यूडीपी टोटल लेंथ। total and at the same time we are having the UDP header। तो चार खाका है यूडीपी हेडर का, जो चार फील्ड है वो तो उस यूडीपी हेडर का अपना है ही, ठीक है। दिस चेकसम, सोर्स डेस्टिनेशन एंड द टोटल। एंड फाइनली इसके बाद भी जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज उसको हम लोग डेटा से एक्चुअल डेटा या फिर डेटा प्लस जीरो पैडिंग से भर देते हैं और इन सब का जो है चेकसम निकाला जाता है। तो चेकसम दैट इज वी ऐड ऑल द बिट्स वर्टिकली इसको अलाइन करते हैं। 16 बिट का पैटर्न है। 16 बिट का जो अलाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल पहला अगर है 0 0 0 0 1 0 0 1 और अगेन 8 बिट्स, अगेन वी हैव 8 बिट दैट इज 1 0 0 1 0 0 1। इस तरह से अगर 4 बिट्स है फिर से 8 बिट्स का 0 1 0 1 0 1। इस तरह से we can go on adding। ये एडिंग चलते रहता है। फाइनली वी गेट द वैल्यू इसका चेकसम। यही चेकसम को वो रिसीवर साइड जो है उसको वो चेक करता है, सो दैट द व्हाट
कि जो डेटा है उसका इंटीग्रिटी ठीक है कि नहीं। What are the operations that is required in that we need as UDP? UDP कौन सा operations को हमारा support करता है? Go for the next page. UDP operations क्या-क्या हैं? पहला ऑपरेशन है that is जो कनेक्शन लेस सर्विस जो एस्टैब्लिश करता है, सो just because it establishes a connectionless service, and that means that there is no relationship between the datagrams, and there is no sequence number, there is no well defined paths, and there is no assembly or reassembly of the messages also, कि ये कुछ भी नहीं है। that is why UDP operation जो है they are generally used for short messages. शॉर्ट मैसेजेस फॉर एग्जांपल मेल्स में हम लोग यूज करते हैं, या फिर राउटर्स जो है रिप प्रोटोकॉल में डेटा को प्रोटोकॉल के जरिए अगर इंफॉर्मेशन सेग्रीगेट करना चाहते हैं, इन दैट केस यूडीपी मैसेज के जरिए ही प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। दूसरा है फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फ्लो एंड एरर कंट्रोल, सो UDP के पास फ्लो एंड एरर कंट्रोल के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय चेकसम के। इट इज ओनली हैविंग चेकसम टू टेक केयर ऑफ द एरर्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन द अपर लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे वो पूरी बेसिकली डिपेंड करता है, और यही मान के चलता है कि एप्लीकेशन लेयर जो है फ्लो और एरर कंट्रोल का ख्याल रखता है। सो इट डिपेंड्स और एक्सपेक्ट्स अपर लेयर टू सी। वो अपर लेयर तो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि अपर लेयर इस चीज का ख्याल रखेगा, क्योंकि मेरे पास जो है फ्लो एंड एरर कंट्रोल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज नो ट्रैकिंग ऑफ डेटाग्राम्स। उसके पास कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, एंड फॉर कोई भी अगर पैकेट या मैसेज लॉस्ट हो जाता है, नो ट्रैकिंग बेसिकली कि पहुंचा कि नहीं। सो अगर लॉस्ट भी हो जाता है तो कोई उसको रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ऑल्सो इट कैनॉट टेक अप द डुप्लीकेशन, कि दैट इज नो मॉनिटरिंग, दैट इज डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन ऑफ द मैसेजेस को भी रोक नहीं सकता। सो दीज आर द थिंग्स दैट यूडीपी कैन नॉट प्रोवाइड। उसके पास सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड द चेकसम। नेक्स्ट इज द, चूंकि यूडीपी पैकेट जो है वो एनकैप्सुलेट करता है, एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग आईपी पैकेट के अंदर में ही यूडीपी पैकेट को एनकैप्सुलेट करते हैं। तो जो सेंडर है वो आईपी पैकेट के आईपी लेयर के पास हैंडओवर करता है, तो पूरा यूडीपी पैकेट जो मैसेज ऊपर से आ रहा है उसको वो आईपी पैकेट के अंदर आईपी का हेडर लगा के, उसका ठप्पा लगा के इट एनकैप्सुलेट्स द पैकेट, एंड एट द रिसीवर साइड द network layer decapsulates the packet and hand over the message to the transport layer of the receiver side. So this process we have seen, and the final thing that is called the queuing. Final thing that we have is called queuing. So what is queuing? Queuing basically जब प्रोसेस जनरेट हो रहे हैं किसी
सॉफ्टवेयर सिस्टम में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में, सो वी कैन हैव इट, द प्रोसेस इज जनरेटेड बाय द process is generated, and it is the work of the operating system to take care of the process and assign those processes a particular port number. तो जब प्रोसेस जनरेट होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो उस होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है कि इस प्रोसेस ये कम्युनिकेट करना चाहता है, इट वांट्स टू रीच सेंड डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, सो इट मस्ट हैव ए पोर्ट नंबर. तो वो क्लाइंट के साइड में, एट द साइड ऑफ क्लाइंट, तो अगर ये प्रोसेस है द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो जैसे ही कोई प्रोसेस कम्युनिकेट करने का प्रयास करेगा, इट विल असाइन थ्री थिंग्स, बेसिकली टू थिंग्स इट इज. पहला, उसको एक पोर्ट नंबर दिया जाएगा जिसके जरिए वो किसी भी आउटसाइड प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकता है. तो यूडीपी उसको पहले एक पोर्ट नंबर देगा. यूडीपी प्रोटोकॉल विल सिट इन दैट transport layer of that operating system and assign that process a port number. So मान लेते हैं कुछ प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं and they range from P1 to Pn at the client side. So it will create two queues. दो वो क्यू बनाता है यूडीपी जब भी कोई क्लाइंट कोई प्रोसेस इनिशिएट करता है. So the operating system, basically the UDP creates queues. तो दो क्यू बनाते हैं. पहला है इनकमिंग क्यू and next is outgoing queue. It creates two queues and port numbers. उस प्रोसेस के साथ वो ये तीन चीज को एसोसिएट कर देता है, दैट इज इनकमिंग क्यू, आउटगोइंग क्यू एंड पोर्ट नंबर. अब जितने तरह का प्रोसेस होगा उतना टाइप ऑफ पोर्ट नंबर वो अलग अलग असाइन करेगा. अगर वो वेल नोन प्रोसेसेस है, well known processes are mapped to well known port numbers, so it will have different port numbers, but it depends upon the application operating system कि वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. तो क्लाइंट में जिस तरह का भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो बेसिकली एक है कि वो एक इनकमिंग क्यू, वन इनकमिंग क्यू एंड वन आउटगोइंग क्यू वो निश्चित बनाएगा. अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि हाँ हर प्रोसेस के लिए हर इनकमिंग क्यू एंड आउटगोइंग क्यू बना सकता है, इट कैन आल्सो क्रिएट, बट एक तो उसको होना पड़ेगा. सो आउटगोइंग क्यू इज बेसिकली जो प्रोसेस जो पोर्ट नंबर से कम्युनिकेट करना चाहता है, एंड इनकमिंग क्यू इज जो पोर्ट नंबर के जरिए कोई इंफॉर्मेशन अगर प्रोसेस के पास अगर आ रहा है. सो दिस इज आउटगोइंग क्यू. And this is incoming queue. Incoming queue. So whenever a client process asks for the port number, it is the responsibility of the operating system to assign the port number and create queue for that processes. So जब तक processes, as long as the processes remain, जब तक वो process active form में है in the operating system, the RAM of the system memory, तब तक उसके लिए queue, UDP queue बना हुआ रहेगा. मतलब कोई भी communication उस process अगर करना चाहेगा, it has to put that message in the queue, that is outgoing queue. If any communication is coming from the server side, it has to receive through its port number. उस प्रोसेस को अपने पोर्ट नंबर के जरिए इनकमिंग क्यू में ही वो डेटा या मैसेज आएगा. तो क्लाइंट जब भी डेटा को सेंड कर रहा है, सो इट इज हैविंग एन इनकमिंग क्यू. सो सेंडिंग डेटा is pushed to the that is outgoing queue. So outgoing queue में जब भी overflow होगा, whenever there is an overflow, suppose the client process is creating more data than the queue is allotted for the process. उस प्रोसेस के लिए या फिर जो भी प्रोसेस जो क्यू बनाया गया है, यूनिक क्यू, उसमें जितना एलिमेंट जितना मैसेज एक बार में अट सकता है उससे ज्यादा रेट में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेटिंग थ्रू सिंगल आउटगोइंग क्यू. ऐसा हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेस. इन दैट केस जो अगर ओवरफ्लो ज्यादा होता है, देन इट इज द वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जो है वो मैसेज फ्लैग करेगा किसको, क्लाइंट प्रोसेस को, दैट यू स्टॉप क्रिएटिंग फर्दर मैसेजेस, वेट. वो एक वेटिंग मैसेज फ्लैग करेगा. वेटिंग मैसेज वो फ्लैग करेगा कि आप कुछ देर रुक जाइए, जो प्रोसेस है उनको क्यू खाली होने दीजिए, देन यू कैन गो फॉर द आउटगोइंग. तो इट इज द वर्क ऑफ द
ways to inform the processes that you don't create further messages because the queue is already full. सिमिलरली अगर कोई इनकमिंग है, कभी सर्वर अगर क्लाइंट को कोई डेटा भेज रहा है, सो इन दैट केस अगर इनकमिंग क्यू में अगर ओवरफ्लो हो रहा है, दैट इज द सर्वर इज सेंडिंग द डेटा टू द क्लाइंट and the client incoming queue is full. In that case, it happens that it simply drops the packet is dropped and सर वो मैसेज दे देता है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल. Destination unreachable. So this is the way it handles the queuing process. उसी तरह से अगर सर्वर में बात करें, if you go for the server side में भी वही बात होता है कि in the server side we are having again that whenever there is a communication initiated by the client, जब भी client कोई communication initiate करता है, so the server, if it arrives at the server, it creates the queues. या फिर सर्वर ही कम्युनिकेट कर रहा है, it is always having a queue. So again it will take a port number for each process, and also the protocol is sitting over there, and we are having the IP. We are having the IP layer beneath. IP layer beneath, and this is our incoming process, and this is our outgoing process in the server side, and we are having different processes communicating corresponding to the processes in the client side, even to PM server side. So whenever there is an incoming process and there is an overflow in the server, ऐसा हो सकता है कि there are multiple clients जो सर्वर को पिंग करना चाह रहे हैं, सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, then the server become irresponsive. तो कभी कभी ऐसा होता है कोई सर्वर बैठ जाता है कि बहुत सारे कोई वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट जो किसी सर्वर में हमको होस्ट किए हुए हैं और इस वेबसाइट में पर यूनिट टाइम बहुत ज्यादा हिट्स आ रहा है. In that case, the server is unable to process all those requests. In that case, उसका जो UDP जो इनकमिंग क्यू है वो फुल हो जाता है, एंड सिंपली सर्वर जो है वो सारे पैकेट को ड्रॉप कर देता है जो भी इनकमिंग मल्टीपल क्लाइंट से आ रहा है, एंड वी से दैट द सर्वर हैज गॉन डाउन, सर्वर डाउन हो चुका है, बैठ गया है. उसी तरह से अगर सर्वर में अगर ज्यादा आउटगोइंग प्रोसेस सर्वर अगर बना रहा है, दैट इज आउटगोइंग मैसेजेस अगर वो क्रिएट कर रहा है, ओवरफ्लो अगर आउटगोइंग में हो रहा है, मतलब वो क्लाइंट को ज्यादा, क्लाइंट जितना रेट से डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है उससे ज्यादा रेट में अगर सर्वर भेज रहा है, इन दैट केस द एप्लीकेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सर्वर, जो सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बताएगा उस यूडीपी प्रोटोकॉल को कि दैट यू स्टॉप क्रिएटिंग फर्दर मैसेजेस, कि अब आप जो है और मैसेज मत भरिए बिकॉज आवर आउटगोइंग क्यू इज फुल. सो इन दिस वे द होल यूडीपी वर्क्स. किसी तरह से ये चलता है, बट इट इज वेरी मच अनरिलायबल. कोई पैकेट का वेल डिफाइंड पाथ नहीं है. यूडीपी के जरिए कोई भी कम्युनिकेशन है तो किसी भी रास्ते को जा सकता है, हो सकता है वो लॉस हो जाए, हो सकता एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से कोई संबंध भी नहीं है. So it is much more unreliable. That is why it is used for short message. जहाँ भी short message use होता है, for example routing information protocol में routers को update करने के लिए वो use होता है. For example वो trivial file transfer protocol में जो है वो उसको हम लोग use कर सकते हैं error control mechanism के लिए. For example जब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते. So it is very restricted for some robust applications only, and that too those applications messages must be very short, बहुत short होना पड़ेगा. This is what about UDP. So in the next session we will go for the TCP. What is about TCP? If you have any questions you can ask.